Okay students, so we had already completed this Hardy-Seuss rule. I told you it will tell you the extent of coagulation. जितना ज़्यादा चार्ज मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट उसका ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस FeOH whole thrice. Okay, the extent of coagulation can be expressed in terms of like this. If we will take this 4 ions, which will be more better coagulant. Okay, the coagulating power of which will be more, obviously for this FeCN6 4 minus. Okay, you will be reading this type of compound in coordination chemistry, okay, in the next chapter. Okay, but now take it as ion only. So coagulating power किसका ज़्यादा होगा? Who will have more negative charge? Okay, as this is a Fe3 plus. Okay, so obviously this will be having more coagulating power than this. Then this will be having less coagulating power, and this will be having the least coagulating power. Okay, so Hardy-Seuss is telling this only. Okay, for example, if any Sol is given, okay, any type of negative Sol is given, okay, negative Sol is given, and the question was given ki which will be better coagulant, and these 3 options are there. So you will select this one as first, and this one as second, and this one as third. Like this also a positive coagulant is given, a positive Sol is given, and this 4 options were given, and it has been asked that which will be the better coagulant, or arrange this in increasing order of coagulating power. So you will be doing like this, that this will be having more, and then this, and then this, and then this. Okay, so like this Hardy-Seuss rule is following. Okay, now next topic is our purification of colloid. Purification of colloid. Purification of colloid, you have स्टडीड अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे स्टेबल किया गया, कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, जो प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ा. बट नाउ प्यूरिफिकेशन, कोलॉइड्स को कैसे प्यूरिफाई करें. ओके, सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ डायलिसिस. दिस इज़ कॉल्ड डायलिसिस. ओके, डायलिसिस यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म. ओके, व्हाट इज़ डन इन दिस, लेट्स सी. इसमें हमने क्या किया, वी हैड टेकन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन अ पार्चमेंट पेपर, एंड वी हैड मेड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एक पार्चमेंट बैग बना दिया, एंड वी हैड टेकन इन अ वाटर टैंक. ओके, वी हैड पुट इन अ फ्रेश वाटर. ओके, फ्रेश वाटर लिया. all the this impurities are there in the colloid solution. Okay, all the impurities are there in this bag in which colloidal solution is kept. Impurities contain small ions also. Okay, ठीक है, colloid है जिसमें कि small ions भी है. ठीक है, और ये इस बैग में लिया गया which is made up of parchment paper. Okay, which is kept in fresh water. Okay, now क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. यू नो दैट दिस इज़ एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा. अंडरस्टूड. ओके, सो व्हाट विल हैपन, द पार्चमेंट पेपर डू नॉट अलाउ द कोलॉइडल पार्टिकल्स टू पास. ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगा, एज इट इज़ ऑफ बिगर साइज, दैट इज़ ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर. ओके, इसका साइज़ है, पार्टिकल साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर का, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या हैं, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं. अंडरस्टूड. दिस पार्टिकल्स आर ऑफ कोलॉइडल रेंज हैविंग साइज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर. सो दिस पार्चमेंट पेपर वोंट अलाउ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, बट द ions it is having small impurities also called ions. Okay, but the ions of the electrolyte can pass, but ions तो पास हो सकते हैं. ठीक है, तो ions क्या होंगे, ions बाहर की तरफ निकल जाएंगे. अंडरस्टूड. एज द कोलॉइडल particle is taken in bag of parchment paper suspended in fresh water. colloidal particle को हमने एक बैग के अंदर लिया which is suspended in fresh water. the impurities slowly diffuse out of the bag leaving behind pure colloidal solution. जो impurities हैं वो बाहर की तरफ diffuse हो जाएंगे leaving behind pure colloidal
सॉल्यूशन, और इसमें क्या रह जाएगा, प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन रह जाएगा, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अंडरस्टूड? इम्प्यूरिटीज़ कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ। अंडरस्टूड? ओके, एक तरह से डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगे। ओके, सो कोलॉइडल सॉल्यूशन का इस तरह से क्या किया गया, प्यूरिफिकेशन किया गया। द सेम मेथड इज़ अप्लाइड इन किडनी ऑल्सो। किडनी फेलियर में क्या होता है, हमारे किडनी में जो यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, किडनी इज़ नॉट वर्किंग, सो आर्टिफिशियल तरीके से होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इससे क्या होता है, यूरिया से जितने भी हमारा जो ब्लड है वो एक कोलॉइड की तरह एक्ट करता है ना, तो ब्लड में जितने भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको फ़िल्टर किया जाता है इस मेथड से। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज़ लाइक यूरिया कैन बी फिल्टर्ड बाय दिस टाइप ऑफ मेथड। ओके, तो उसमें से जो ब्लड होता है, ब्लड से सारा चीज़ बाहर निकाल लिया जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है फिर उसको रखा जाता है। अंडरस्टूड? तो आपको पता है डायलिसिस कराना पड़ता है महीने में 2 बार, बिकॉज ऑल द यूरिया इज़ कलेक्टेड इन द ब्लड एंड दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट बाय दिस मेथड। एक इलेक्ट्रिकल डायलिसिस भी होता है। इलेक्ट्रिकल डायलिसिस इज़ डन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस ऑल आर देयर इन योर चैप्टर। ओके, नाउ सम स्मॉल टॉपिक्स आर देयर, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग दिस from the book as these are very small. Okay, please see.